Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your EVS educator. Today, I will explain you the 15th chapter of class 5th. This chapter name is Monuments of India. In this chapter, we will learn about the Monument of India. Identify these monument and write their name. This is the tune-up question. This is Hawa Mahal, Red Fort, India Gate, and Statue of Unity. Now let's start the chapter. India being a land of people following varying lifestyle through its long experience has developed through and languages, thoughts and languages, music and dance, art and architecture, science and literatures. इंडिया एक क्या है, ऐसी लैंड पीपल की लैंड है जहां पर लाइफस्टाइल अलग अलग है, through its long experience has developed. तो यहाँ पर थॉट्स एंड लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, म्यूजिक, डांस, आर्ट, आर्किटेक्चर, साइंस एंड लिटरेचर्स के अकॉर्डिंग दे आर पास्ड डाउन टू अस बाय अर्लियर जनरेशन. ये कैसे आए हैं हमारे पास? पुरानी जनरेशन से ही हमारे पास चलते आ रहे हैं. एंड फॉर्म्स फ्रॉम आवर हेरिटेज. द हेरिटेज इज ऑफ टू टाइप्स. हेरिटेज टू टाइप का होता है, नेचुरल हेरिटेज एंड कल्चरल हेरिटेज. द नेचुरल हेरिटेज इंक्लूड्स फॉरेस्ट, एनिमल्स, बर्ड्स, रिवर, माउंटेन्स, वैली, डेजर्ट, मिनरल्स एंड अदर नेचुरल फीचर्स ऑफ अवर कंट्री. जो नेचुरल हेरिटेज है उसमें इंक्लूड है फॉरेस्ट, एनिमल्स, बर्ड्स, रिवर, माउंटेन्स, वैली, डेजर्ट, मिनरल्स एंड अदर नेचुरल फीचर्स. The cultural heritage includes monuments of buildings. Cultural heritage में है monuments of buildings, coins, pillars and rocks, inscriptions, place of worship, dance, drama, music, poetry, paintings, language and literature and fair and festivals. The rituals and customs are also a part of cultural heritage. Rituals और custom भी part है cultural heritage के. Language and literature, there are 22 major languages spoken in India. Major 22 language बोली जाती है इंडिया में. Almost every state in our country has its own language. Almost हर state के हमारे country के अपनी language है. Hindi is the most common language spoken by the majority of people in our country. हिंदी most common language है जो हमारे country के लोग majority में बोलते हैं. We have a rich collection of literature which forms an important part of our heritage. हमारा rich collection है literature का जो एक important part है हमारे heritage का. This includes both religion literature and religious literature. इसमें दोनों type के literatures हैं, religious भी और non religious भी. Religious literatures include the Ramayana, the Mahabharata, the Bhagavad Gita, the Vedas and Purans. Religious book include stories, dramas, poem, etc. written by famous writers. रिलीजियस में रामायण, महाभारत, भागवत गीता, वेद और पुराण है. और नॉन रिलीजियस में स्टोरीज बुक है, ड्रामा बुक है, पोएम बुक है. डांस, ड्रामा एंड म्यूजिक. डांस एंड म्यूजिक आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन कल्चरल हेरिटेज. डांस और म्यूजिक एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इंडियन कल्चरल हेरिटेज के. देयर आर टू टाइप्स ऑफ डांस एंड म्यूजिक इन इंडिया. दो टाइप के डांस होते हैं, डांस एंड म्यूजिक होते हैं इंडिया में, क्लासिकल और फोक. क्लासिकल डांस, these dances required special training and practice. इन डांसेस में स्पेशल ट्रेनिंग और प्रैक्टिस की जरूरत होती है. सम ऑफ द फेमस क्लासिकल डांसेस ऑफ वेरियस स्टेट ऑफ इंडिया आर. कुछ फेमस क्लासिकल डांसेस है भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक नॉर्थ इंडियन स्टेट, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर, उड़ीसी उड़ीसा, कथकली केरला. Now folk dance, these dances are performed by the group of people on special occasions such as festivals, marriage, the birth of a child, harvesting time, etc. ये डांस परफॉर्म किए जाते हैं ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा स्पेशल ओकेजन पर, जैसे फेस्टिवल्स है, मैरिज, किसी बच्चे का बर्थ है, हार्वेस्टिंग टाइम है. सम ऑफ द फेमस फोक डांस ऑफ इंडियन स्टेट आर भांगड़ा एंड गिद्दा पंजाब, नाती हिमाचल प्रदेश, बिहू असम, मांगो गोवा, रोफ जम्मू एंड कश्मीर, तमाशा महाराष्ट्र, घूमर राजस्थान, गरबा एंड रास गुजरात. नाउ क्लासिकल म्यूजिक इज आल्सो टू स्टाइल. क्लासिकल म्यूजिक भी दो स्टाइल के हैं, हिंदुस्तानी एंड कार्नेटिक. बोथ टाइप ऑफ म्यूजिक आर बेस्ड ऑन रेंज. These are different
राग्स फॉर डिफरेंट टाइम, यहाँ पर अलग अलग राग होते हैं अलग अलग टाइम के लिए। ओकेजन एंड इवन सीजन्स, ओकेजन्स अलग अलग ओकेजन्स होते हैं, इवन सीजन भी अलग अलग होते हैं। बैजू बावरा, तानसेन एंड स्वामी हरिदास वर अमंग द वेल नोन म्यूजिशियन ऑफ इंडिया। बहुत फेमस म्यूजिशियन है बैजू बावरा, तानसेन एंड स्वामी हरिदास। नाउ एक्टिविटी टाइम, राइट द नेम ऑफ दीज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन क्लासिकल म्यूजिक। दिस इज सितार, फ्लूट, बांसुरी, तबला, और दिस इज हारमोनियम। Now, the art. India has a glorious history of art and architecture. India की glorious history है और architecture में। The Indian king and emperor were great patron of art. The carving and paintings on the wall of the ancient temple, palaces and caves are the highest level. जो पहले पेंटिंग होती थी और कार्विंग होती थी वॉल्स पर एंशियंट टाइम में, टेम्पल्स पर, पैलेसेस पर, महलों में, केव्स पर, वो बहुत ही हाई लेवल की होती थी। द पेंटिंग्स इन द केव्स ऑफ अजंता एलोरा शो सीन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ बुद्धा। जो पेंटिंग है केव्स में, अजंता एलोरा की केव में, वो दिखाती है लाइफ ऑफ बुद्धा के सीन्स को। अंडर द मुगल रूल मिनिएचर पेंटिंग्स बिकम पॉपुलर। मुगल रूल्स में मिनिएचर पेंटिंग बहुत पॉपुलर थी। दीज पेंटिंग्स शो कोर्ट सीन, hunting, landscape, battles and scenes from the रामायण and the महाभारत। ये पेंटिंग्स दिखाती हैं कोर्ट सीन्स को, हंटिंग्स को, लैंडस्केप को, बैटल्स को और रामायण महाभारत के सीन को। आवर कंट्री इज वेरी रिच इन आर्किटेक्चर। हमारी कंट्री बहुत ही रिच है आर्किटेक्चर में। द हिस्टोरिकल फोर्ट एंड पैलेसेस आर जेम ऑफ अवर आर्किटेक्चरल हेरिटेज। जो हिस्टोरिकल फोर्ट और प्लेसेस हैं, पैलेसेस हैं, वो बहुत जेम है हमारे आर्किटेक्चर हेरिटेज के। The first is Taj Mahal. The Taj Mahal is the most famous monument in India. जो ताज महल है वो most famous monument है इंडिया का। It is situated in Agra. ये आगरा में है। It was built by the Mughal Emperor शाहजहां in the memory of his queen मुमताज महल। ये बनवाया था मुगल एम्परर शाहजहां ने, किसकी याद में? मुमताज महल, अपनी रानी मुमताज महल की याद में। It is built of white marble. ये white marble से बना हुआ है। The wall has beautifully carved floor design. यहाँ की वॉल बहुत ही सुंदरता से डिजाइन की गई है। इट इज अ ह्यूज गार्डन विद अ रिफ्लेक्टिंग पूल। इसमें एक बहुत बड़ा गार्डन है और रिफ्लेक्टिंग पूल के साथ। एवरी ईयर थाउजेंड ऑफ टूरिस्ट विजिट द ताज महल। द नेक्स्ट इज कुतुब मीनार। द कुतुब मीनार इज द हाईएस्ट स्टोन टावर इन इंडिया। कुतुब मीनार हाईएस्ट स्टोन टावर है इंडिया में। इट इज बिल्ट ऑफ रेड सैंडस्टोन एंड इज 72.5 मीटर हाई। ये रेड सैंडस्टोन से बना है और 72.5 मीटर लंबा है। इट्स स्ट्रक्चर वाज started by Qutbuddin Aibak, but after his death it was completed by his successor Iltutmish। ये किसने शुरू किया था, किसने बनवाना स्टार्ट किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन उनकी डेथ के बाद ये किसने कंप्लीट किया? इल्तुतमिश ने। It is said that the Qutub Minar has 7 storied in all, but now there are 5 story। ये 7 storied था पूरा, लेकिन अब ये 5 है। Each story has a balcony. हर स्टोरी में बालकनी है। There is a narrow spiral staircase that goes to the top। यहाँ पर एक पतली सी क्या है, staircase है जो ऊपर जाती है। The wall bears inscriptions from the Holy Quran. It has 379 curved step। इसमें 379 curved step है। Near Qutub Minar compound there is an iron pillar। कुतुब मीनार के कंपाउंड में आयरन पिलर्स है। इट हैज रिमेन रस्ट फ्री फॉर लास्ट 1500 ईयर इवन इन एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन। द चार मीनार, इट इज सिचुएटेड इन हैदराबाद। ये हैदराबाद में सिचुएटेड है। इट वाज बिल्ट बाय सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह। इट इज मोर देन 400 ईयर ओल्ड। ये 400 साल से भी ज्यादा पुराना है। इट वाज बिल्ट टू सेलिब्रेट एन एरेडिकेशन ऑफ द प्लेग एपिडेमिक फ्रॉम द सिटी। इट इज रेक्टेंगुलर 4 आर्ट स्ट्रक्चर 180 feet high. It has 4 beautiful curved minarets at the 4 corners. It is illuminated daily in the evening. Now the Gol Gumbad.
The Gold Gumbaz situated in बीजापुर in कर्नाटका. ये कहाँ पर है? बीजापुर, कर्नाटक के बीजापुर में. is the second largest dome in the world. ये second largest dome है पूरे वर्ल्ड में. It is the mausoleum of Muhammad Adil Shah. This huge dome stand without any pillars. ये बिना pillars के खड़ी हुई है. The Sun Temple. It is a 13th century temple dedicated to the god Sun. ये 13th century का temple है जो dedicated है god सन को. इट इज सिचुएटेड इन कोणार्क नियर पुरी इन उड़ीसा. ये उड़ीसा के कोणार्क में स्थित है, पुरी के पास में. द मेन टेम्पल इज इन द शेप ऑफ द चैरियट with 12 pillar of huge wheel driven by 7 horse. Now the Meenakshi temple. The Meenakshi temple is situated in Madurai. Meenakshi temple कहाँ situated है? मदुरई में. It was built in the 16th century. ये 16th century में बनाया गया था. It has 2 shrine dedicated in Meenakshi, sister for Lord Vishnu and son Dareshwara, Lord Shiva. In the Meenakshi temple there is a hall which has 1000 pillars in it. इस मंदिर में, मीनाक्षी मंदिर में एक हॉल है जिसमें 1000 पिलर्स है. ईच पिलर इज कर्व्ड विद स्कल्पचर टेलिंग स्टोरीज फ्रॉम द लाइव्स ऑफ गॉड एंड गॉडेस. यहाँ पर हर पिलर पर एक स्कल्पचर बना हुआ है जो स्टोरी बताता है गॉड और गॉडेस की लाइफ के बारे में. द इंडिया गेट. द इंडिया गेट इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली. इंडिया गेट कहाँ है? न्यू दिल्ली में. इट वॉज बिल्ट इन 1931 टू पे होमेज टू द इंडियन सोल्जर्स हु हैड सेक्रीफाइस देयर लाइव्स ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार. ये बनाया गया था 1931 में, जो पे होमेज था किनके लिए? इंडियन सोल्जर्स जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया था फर्स्ट वर्ल्ड वार में. द नेम ऑफ द सोल्जर्स हु डाइड फॉर द कंट्री आर इनक्रिप्टेड ऑन द वॉल. जो उनके नाम यहाँ पर गुदे हुए हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाई किया था. द अमर जवान ज्योति अंडर द इंडिया गेट इज केप्ट अलाइट द होल डे एंड नाइट इन द मेमोरी ऑफ दो सोल्जर्स हु sacrificed their lives for their motherland in the Indo-Pak war of 1971. एक अमर जवान ज्योति जलती रहती है यहाँ पर, जो पूरा दिन और पूरी रात जलती है. किसकी मेमोरी में? जो सोल्जर्स जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया था अपनी मदरलैंड के लिए इंडो पाक वार में 1971 में. प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स. People from different parts of the world come to see these historical monuments. लोग अलग अलग पार्ट से पूरे वर्ल्ड के आते हैं इन historical monuments को देखने के लिए. We must always take care of our monument and preserve them for our future generation. हमें हमेशा टेक केयर करनी चाहिए अपने monuments की और उनको प्रिजर्व करना है अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए. वी कैन टेक केयर ऑफ दीज मॉन्यूमेंट्स इन द फॉलोइंग वे. हम इनकी किस वे में टेक केयर कर सकते हैं? डू नॉट थ्रो एनी गार्बेज इन द प्रीमिसेस व्हेन यू विजिट देयर दीज प्लेस. जब भी आप ऐसी जगह पर देखने के लिए जाएं वहां पर गार्बेज, गंदगी ना फैलाएं, ना फेंके. नेवर स्केच और राइट ऑन द वॉल ऑफ एनी मॉन्यूमेंट. किसी भी वॉल पर, मॉन्यूमेंट के किसी वॉल पर स्क्रैच और कुछ भी ना लिखें. परचेज द एंट्री टिकट बिकॉज दिस मनी गोज फॉर द मेंटेनेंस ऑफ दीज मॉन्यूमेंट्स. हमेशा एंट्री टिकट खरीदे क्योंकि ये मनी मेंटेनेंस में जाती है इन मॉन्यूमेंट्स के. ट्राई टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन इन द एरिया सराउंडिंग हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट टू प्रोटेक्ट देम. एक ट्राई करें कि पोल्यूशन को रिड्यूस करें उस एरिया के सराउंडिंग में, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टैब्लिश द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व आवर हिस्टोरिकल मूवमेंट. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्टैब्लिश किया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिससे प्रोटेक्ट कर सके और प्रिजर्व कर सके हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया को. दे ऑल्सो अंडरटेक द रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ दीज मॉन्यूमेंट. डैमेजिंग दीज मॉन्यूमेंट्स इज पब्लिशेबल बाय लॉ. अगर इनको हम डैमेज करते हैं तो वो क्या है? लॉ के खिलाफ है. नाउ क्विक रिकॉल. देयर आर 22 मेजर लैंग्वेजेस स्पोकन इन इंडिया. डांस एंड म्यूजिक आर द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन कल्चरल हेरिटेज. द कुतुब मीनार इज द हाईएस्ट स्टोन टार इन इंडिया. नाउ कम टू द वर्ड मीनिंग. मॉन्यूमेंट्स मतलब ओल्ड बिल्डिंग, हेरिटेज मतलब स्पेशल पोजीशंस. नाउ इट्स टाइम फॉर एक्सरसाइज. टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन. देयर आर मेजर लैंग्वेज स्पोकन इन इंडिया 22. Bharatanatyam is the famous classical dance of Tamil Nadu. Which of the most popular folk dance of Gujarat? Garba and Ras. Meenakshi temple is situated in Madurai. Now fill in the blanks. Dash and dash are two kinds of heritage: natural and cultural.
Dash books include story, drama, poem, etc. Non-religious. Classical music is of two types: traditional, Cardiac. Sun Temple is located in Konar. Now answer the following question. What do you mean by heritage? आप heritage से क्या समझते हैं? Next भी वही मिलेगा same page पर. What are natural and cultural heritage? Heritage और natural cultural heritage तीनों के बारे में देखते हैं फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन का आंसर. तो आइए देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा यहां से यहां तक, क्योंकि इसमें सिर्फ हेरिटेज के बारे में पूछा है. अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं. सेकंड क्वेश्चन का आंसर आएगा हमारा सेम पेज पर, जस्ट उसके नीचे द हेरिटेज ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल एंड कल्चरल. तो पूरा दोनों के बारे में बताना है कि ये क्या क्या होते हैं. ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है. चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लिटरेचर. सेम उसी पेज के नेक्स्ट पेज पर हमने लिटरेचर के बारे में पढ़ा था, लैंग्वेज एंड लिटरेचर. तो यहां पर इसका आंसर यहां से यहां तक कंप्लीट आएगा थर्ड क्वेश्चन का आंसर. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. हाउ वी प्रिवेंट आवर मॉन्यूमेंट. हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं. तो यहाँ पर कुछ वेज हैं 1 2 3 4. ये 4 तरीके हैं जिससे हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं अपने मॉन्यूमेंट्स को. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. Let's discuss. Name the monument of India considered World Heritage Site. ताजमहल. इस क्वेश्चन को आपको अपनी क्लासरूम में क्या करना है, डिस्कस करना है. विच आर द टू एपिक्स इन इंडियन लिटरेचर. कौन सी टू एपिक्स है, हुज स्टोरी डू दे टेल. ये किसकी स्टोरी बताते हैं. तो इस टॉपिक्स को जैसे आपको चैप्टर में एक्सप्लेन किया है क्लास में डिस्कस करेंगे. बूस्ट योर स्किल, ब्रेन ट्विस्टर. व्हाई शुड वी प्रोटेक्ट आवर मॉन्यूमेंट. हमें अपने मॉन्यूमेंट को प्रोटेक्ट क्यों करना चाहिए, अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए, कि वो भी हमारे पास्ट के बारे में जाने. एक्टिविटीज ऑन विजिट एनी मॉन्यूमेंट नियर योर एरिया. विजिट करना है एक मॉन्यूमेंट जो आपके एरिया के आसपास हो. इट मे बी एन ओल्ड टेम्पल, अ मॉस्क, चर्च एंड ऑफिस बिल्डिंग. को कुछ भी हो सकता है, टेम्पल, मॉस्क, चर्च, ऑफिस बिल्डिंग. कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट इट. इसके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए. राइट वेदर इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट. आपको लिखना है कि क्या ये प्रोटेक्ट करना इंपॉर्टेंट है. लाइफ स्किल एंड वैल्यूज आर मॉन्यूमेंट आर पार्ट ऑफ आवर रिच हेरिटेज. हमारे मॉन्यूमेंट हमारे पार्ट है रिच हेरिटेज का. वी मस्ट प्रोटेक्ट देम. हमें इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए. वी शुड नॉट राइट एनीथिंग ऑन द वॉल्स ऑफ एनी मॉन्यूमेंट. हमें किसी भी मॉन्यूमेंट की वॉल पर नहीं लिखना चाहिए. थैंक यू स्टूडेंट्स.